हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे pyridine, which is a six-membered heterocyclic compound having nitrogen as heteroatom. Pyridine is also called azine in IUPAC and its molecular formula is C5H5N. Pyridine is a very good base, is known for its basic properties or basic characteristic. ये है pyridine का मॉलिक्यूल, जिसमें अगर हम नंबरिंग करें 6 मेंबर्ड है ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. फर्स्ट नंबर जो है वो हेट्रोएटम को जाता है, एन को जाएगा नंबर 1 और इस तरह से नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6. pyridine, तो pyridine बिल्कुल बेंजीन की तरह ही लगता है. सिर्फ फर्क किस बात का है कि बेंजीन में यहाँ कार्बन एटम होता है और pyridine में नाइट्रोजन एटम है. pyridine की ये जो डेजिग्नेशन है पोजीशंस की, ग्रीक लेटर्स में अगर हमें ये पोजीशंस डेजिग्नेट करनी है तो ये पोजीशन 2 पोजीशन अल्फा, ये भी अल्फा, देन बीटा, बीटा, गामा. नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में होता है. नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा, दूसरी तरफ वाला भी अल्फा, फर्स्ट कार्बन on either side. Similarly, second carbon on either side will be beta and the third carbon will be a gamma carbon. Now let us study in detail about the structure and some properties of this molecule of pyridine. So we start with the structure. अब कार्बन और नाइट्रोजन इन्वॉल्व है रिंग में, तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन. तो हम सीधा एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन और 2p के सभी ऑर्बिटल्स 2px, 2py और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन ईच, बिकॉज कार्बन शोज टेट्रा कोवेलेंसी. और नाइट्रोजन का एक्साइटेड स्टेट 2s to 2p3, ये वैलेंस शेल है नाइट्रोजन का. 2s, 2px, 2py, 2pz, 2s to 2p3. तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया. अब दोनों तरह के एटम्स, कार्बन और नाइट्रोजन एटम, pyridine में they undergo sp2 hybridization. All the atoms in pyridine are sp2 hybridized, चाहे कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन हो. All the atoms are sp2 hybridized. इस तरह से. अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचता है कार्बन में भी और नाइट्रोजन में भी, उस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन. तो अब अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है pyridine का, तो यहां नाइट्रोजन लिखा और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने दिखाया लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड nitrogen, since it undergoes sp2 hybridization, so one of the hybridized orbitals of nitrogen will contain a lone pair of electrons. So this lone pair is present in a hybridized orbital. The other 2 hybridized orbitals of nitrogen will form sigma bonds with the carbon atoms on either side. इसी तरह कार्बन एटम भी sp2 hybridized है, that means it will form 3 sigma bonds. So if we talk about this carbon, the 3 sigma bonds it forms are, one this bond, another is this bond, and third is this bond. So these 3 sigma bonds carbon forms. Similarly, every carbon forms 3 sigma bonds. ये दिखा दिया. अब क्योंकि ये ऑर्बिटल्स, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर lying in such a way that they can overlap laterally or sideways
The lobes which are above the plane can overlap with the lobes which are above the plane, and the lobes which are below the plane can overlap among themselves in this way. And therefore an electron cloud of 6 electrons, 6 pi electrons is formed, 6 pi electrons. And from where are these 6 pi electrons coming? One electron is being contributed by each atom, including nitrogen atom. Each atom of the ring, 5 कार्बन एटम्स और 1 नाइट्रोजन एटम, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. So as we can see that this number 6 pi electrons is according to Huckel's rule, Huckel's 4n plus 2 pi electron rule. And moreover, there is a continuous ring of electron clouds which is embracing all the atoms. Therefore, the molecule of pyridine is aromatic in character, and its resonance energy is of the order of 95 kilojoule per mole, which is quite appreciable. And therefore, we can say that pyridine shows quite a good amount of aromatic character. Now, let us see the resonating structures of pyridine. जैसे हमने बाकी सभी हेट्रोसाइक्लिक्स के लिए किया, हम pyridine के लिए भी उसी तरह से कर रहे हैं. पहले हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, अब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. ये मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया pyridine को, मैंने डबल बॉन्ड यहां बनाया है. अब एक स्ट्रक्चर हम और बनाएंगे जहां हम डबल बॉन्ड इस तरफ लेंगे, बाकी 2 डबल बॉन्ड इधर आएंगे. अब नाइट्रोजन के ऊपर हमने यहाँ क्या नहीं दिखाया, हमने ये लोन पेयर नहीं दिखाया. ठीक है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से 3 इलेक्ट्रॉन है? ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दिस बॉन्ड. और ये जो हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, दीज 2 सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन तो दिखाए, मगर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हमने नहीं दिखाए, और इनको दिखाना है तो हमें इनको अलग से एज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इस तरह से दिखाना है. तो यहां भी बना देते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये तो हो गए 2 स्ट्रक्चर्स जो बेंजीन की तरह हैं. बिल्कुल, बेंजीन में भी हम इसी तरह से 2 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन. अब देखते हैं आगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स pyridine में पॉसिबल हैं. अब देखिए, ये सब तो कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ क्या है, देयर इज अ नाइट्रोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है. ये कार्बन है, इधर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो नाइट्रोजन क्या करेगा कि ये जो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट विल डू व्हाट, इट विल पुल दीज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच लेगा. और बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर, अब अपनी तरफ खींच लेगा तो इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड, मेकिंग द रिंग कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये 2 डबल बॉन्ड बना दिए जैसे थे वैसे ही. तो अब ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया जिसमें हम चार्ज सेपरेशन देख रहे हैं. आगे और कुछ इसी तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं. कैसे बनेंगे ये स्ट्रक्चर्स? अब ये जो पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा. इस तरह से यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया. नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चलता रहेगा. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रिंग कार्बन एटम्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है, जबकि बाकी की जो हेट्रोसाइक्लिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं, पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन, उनमें जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो रिंग कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली बात है, क्योंकि इसी से पता लगेगा ये जो यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहा है कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक है pyridine, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस इट विल शो, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन लेट अस डिस्कस दिस. ओके, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और यहां पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज. और इसके बाद और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करते हैं तो ये और ये वाला स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे.
तो इस तरह से ये कुल मिला के इतने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पिरिडीन के हैं। ओके, तो अब जो डिस्कशन हम कर रहे थे, लेट अस कंटिन्यू विद दैट, कि रिंग कार्बन एटम्स में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है किसी एरोमेटिक कंपाउंड को, तो इलेक्ट्रोफाइल तो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर ऑलरेडी जो एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर उसकी रिंग पे जो एटम्स हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशंस पे कैसे अटैक करेगा, स्पेशली कौन कौन सी पोजीशंस? ये पोजीशन 2 है, ये 4 है और ये 6 है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता भी है तो वो उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, मतलब पोजीशन 3 पे या पोजीशन 5 पे। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पिरिडीन की होती हैं, हम ये देखते हैं कि ज्यादातर पिरिडीन में इलेक्ट्रोफाइल गेट्स सब्स्टिट्यूटेड एट पोजीशन 3। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो जाती है मगर अंडर वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस, right? That means this nitrogen atom, this heteroatom, this nitrogen atom in pyridine, it deactivates the molecule towards electrophilic substitution reaction, क्योंकि इसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जबकि रिंग कार्बन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जबकि अगर हम कार्बन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो उनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ये 3 तो नहीं होते, ये 2 होते हैं ना। तो पिरिडीन जो है बेंजीन के कंपैरिजन में इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेट मी राइट दिस हियर। Pyridine is less reactive than benzene towards electrophilic substitution reactions. Reactions क्या है ये? Reactivity towards electrophilic substitution reaction. Reactivity towards electrophilic substitution reaction बता रहे हैं हम यहाँ इस कंपैरिजन में कि बेंजीन इज मोर रिएक्टिव, पिरिडीन इज लेस रिएक्टिव। चलो कंटिन्यूइंग विद दिस डिस्कशन, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का तो हमने समझ लिया। तो अब अगर रिंग कार्बन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे, तो इसका मतलब कि क्या न्यूक्लियोफाइल इन पोजीशंस पे अटैक कर सकता है? लेट अस सी, देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के देखेंगे, एक मैकेनिज्म लिखेंगे जहां पे जिस तरह हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं हेट्रोएटम पे, एरोमेटिक कंपाउंड पे, उसी तरह न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के देखेंगे कि किस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्या वो स्टेबल होते हैं कि नहीं। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि what are the mechanisms of electrophilic substitution reaction and nucleophilic substitution reactions, and what about the orientation? What about the orientation कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म्स लिखने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हैं पहले। ये मैकेनिज्म हालांकि हम कई बार लिख चुके हैं। 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, बहुत सारे अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये चीज हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसका मैकेनिज्म देखते हैं फॉर पिरिडीन। तो फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव प्लस Z नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहां बना देते हैं बॉन्ड्स ऐसे, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमें दिखाना है, पोजीशन 3 पे दिखाना है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, यहां बताया आपको कि पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, पोजीशन 3 पे नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर सकता है, 2
2 और 4 पे नहीं करेगा। तो 3 पे हम जब भी मैकेनिज्म हमने दिखाना है pyridine का, हमने अटैक कहाँ दिखाना है, एट पोजीशन 3। अब ये है 3 पोजीशन, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तब जाके ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां हमें इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना है, यहां पॉजिटिव चार्ज, बाकी 2 डबल बॉन्ड्स अपनी जगह जैसे थे वैसे ही। लेट अस ड्रॉ क्विकली अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, H E, ये यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहां है। नेक्स्ट पहले ही तो यही बना देते हैं, H और E, यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके बाद और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है तो हमने ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब थर्ड स्टेप होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम यही वाला बना देते हैं जो सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया था, H E। ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड वापस अपनी जगह रिंग पे आ जाएगा, नाइट्रोजन इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एंड द इलेक्ट्रोफाइल गेट्स सब्स्टिट्यूटेड, H गेट्स रिमूव्ड। ये है मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ क्या फर्क है कि हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 3 पे दिखाना होता है। पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन के केस में हम इलेक्ट्रोफाइल को 2 पे अटैक करवाते हैं। अब इसी से आगे ओरिएंटेशन की बात आ जाती है। तो ओरिएंटेशन मतलब हमने कंपेयर करना है, इस इलेक्ट्रोफाइल 3 पे क्यों अटैक करता है, 2 या 4 पे क्यों नहीं। तो हम वो वाले अटैक्स दिखा सकते हैं, तभी कंपैरिजन होगा। सो अटैक एट पोजीशन 2, attack at position 2, तो हम इसमें सिर्फ सेकेंड स्टेप दिखा रहे हैं जो स्लो स्टेप होता है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अब ये पोजीशन 2 है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल 2 पे आके अटैक करेगा, नाइट्रोजन H E। अच्छा, अब क्या हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इट विल नॉट बी हैप्पी व्हाइल अकोमोडेटिंग दिस पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे आर मोर हैप्पी व्हेन दे हैव टू अकोमोडेट अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज अकोमोडेट करने के लिए they are not ready, and therefore ये जो structure बना contributing structure, this is an unstable structure। चलो let us draw other structures। अब क्या है, अब ये इधर और यहां पॉजिटिव चार्ज H और E, ये इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही बना दिए। ठीक है जी, अब ये इधर शिफ्ट तो इधर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन H E, ये डबल बॉन्ड बनाया, इधर पॉजिटिव चार्ज और कहाँ डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके बाद और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। पर हमने क्या देखा कि इन 3 स्ट्रक्चर्स में ये वाला जो स्ट्रक्चर था इट वाज हाईली अनस्टेबल, और ऐसा कोई अनस्टेबल स्ट्रक्चर तब नहीं बनता जब हम अटैक को 3 पोजीशन पे शो करते हैं। तो हेंस वी कैन कंपेयर एंड कंक्लूड फ्रॉम दिस these resonating structures that the electrophile will attack at position 3 and not at position 2 और at position 4। 4 पे भी आप इसी तरह से दिखा सकते हैं, अटैक एट पोजीशन 4।
यहां बनाया डबल बॉन्ड, फिर इधर बनाए ये 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब ये पोजीशन 4 होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे शिफ्ट इधर, तब जाके यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। नाइट्रोजन लिखा, यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, यहाँ पे एक H और एक E लिखा, इस कार्बन पे लिखा पॉजिटिव चार्ज, और ये बाकी के 2 डबल बॉन्ड वैसे ही बना दिए। लेट अस सी कि इस तरह का स्ट्रक्चर क्या यहां भी कोई बनेगा जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, He। अब इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक ये वाला बॉन्ड है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट हो गए, तो अब आया नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड किसके बीच है, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच है ना। तो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको बना देते हैं, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड इधर बनाया, तो ये आ गया वो अनस्टेबल वाला स्ट्रक्चर। क्यों अनस्टेबल है ये? बिकॉज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। नाइट्रोजन, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड H E, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इस तरह से हम ओरिएंटेशन की बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट पोजीशन 3, और इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा वो भी देखा जा सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे ओरिएंटेशन। तो अब हम नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा कि सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक दीज पोजीशंस। सो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions in pyridine. Nucleophilic substitution reactions ये हमने लिखा pyridine, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखा दिए, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब न्यूक्लियोफाइल लेना है, इसको इस तरह से ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, एक जनरल कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ये, और ये भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, स्लो स्टेप। ओके, अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है और पोजीशन 2 पे अटैक हमने इसका दिखाना है, तो ये है पोजीशन 2। अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और इसको सेकेंड पोजीशन पे अटैक करना है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेकेंड पोजीशन को छोड़ करके ये शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन के ऊपर एक पेयर पहले ही था, एक पेयर और आ गया, और इसलिए इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ एक हाइड्रोजन था, अब क्या लग गया, एक न्यूक्लियोफाइल लग गया, और ये 2 डबल बॉन्ड्स अपनी जगह। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, और ये जो स्ट्रक्चर आया है ये एक्सेप्शनली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, और हमने पहले पढ़ा कि जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, जैसे कि यहाँ था, तो हमने उसको अनस्टेबल बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इट इज नॉट इन अ पोजीशन टू अकोमोडेट अ पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज since nitrogen is electronegative element, so it will very comfortably or very well accommodate this negative charge. So this nitrogen is very happy with this negative charge. So that means this structure is exceptionally stable. Okay, अब next क्या resonating structures यहाँ बनेंगे कि ये जो electrons हैं ये आगे shift हो जाएंगे, तो ये जो pi electrons हैं ये आगे वाले कार्बन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, ये डबल बॉन्ड H न्यूक्लियोफाइल, और यहां आएगा एक बॉन्ड। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, और ये अगले कार्बन पे
नाइट्रोजन, यहाँ दिखाया H, न्यूक्लियोफाइल। ये इतने ही स्ट्रक्चर्स इसमें बनने वाले हैं। नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहाँ, और ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तभी सब्स्टिट्यूशन होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां से देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटॉन, और नहीं, हाइड्राइड आयन। दिस इज हाइड्राइड आयन, इसको मैं काट के लिखती हूँ। हाइड्राइड आयन क्या हुआ? H नेगेटिव। H नेगेटिव का मतलब कि ये हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर निकलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ। रिंग के तीनों डबल बॉन्ड फिर से बन जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये न्यूक्लियोफाइल विल गेट सब्स्टिट्यूटेड। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए हम कंपेयर करते हैं अटैक एट पोजीशन 4 एंड एट पोजीशन 3। अटैक एट पोजीशन 4 पे देख लेते हैं। 2 और 4 फेवरेबल पोजीशंस हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। तो लेट अस सी यहां भी क्या इस तरह का कोई स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब दिखाएंगे एट पोजीशन 4, दिस इज पोजीशन 4। ये न्यूक्लियोफाइल यहां कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट अवे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफाइल से उल्टा हो रहा है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल शिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द पोजीशन वेयर न्यूक्लियोफाइल हैज टू अटैक। तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन था, एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा यहाँ, ये डबल बॉन्ड्स अपनी जगह और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे चले जाएं। H न्यूक्लियोफाइल, यहाँ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये वही वाला स्ट्रक्चर आ गया जैसे अटैक एट पोजीशन 2 में भी आया था, जहां नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एंड फॉर द सेम रीजन दिस स्ट्रक्चर विल ऑल्सो बी स्टेबल स्ट्रक्चर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये आगे, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज H न्यूक्लियोफाइल इस तरह, और लास्ट में रिमूवल ऑफ अ हाइड्राइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है या हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन, और यहां होगा रिमूवल ऑफ हाइड्राइड H नेगेटिव। हाइड्राइड मीन्स H नेगेटिव आयन। ये वाला स्ट्रक्चर हमने फिर यहां लिख दिया, और इसमें से रिमूवल दिखाना है ऑफ हाइड्राइड आयन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन बाहर निकाला और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहां वापस रिंग में। इधर नाइट्रोजन एंड न्यूक्लियोफाइल गेट्स सब्स्टिट्यूटेड। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेकिंग प्लेस एट पोजीशन 4. Now let us see what happens when the attack takes place at position 3. Attack at position 3. न्यूक्लियोफाइल, ये है पोजीशन 3। ये पोजीशन 3 है, तो यहां न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग अवे। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट करवाने हैं। H न्यूक्लियोफाइल, यहां शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स, यहां डबल बॉन्ड्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर,
न्यूक्लियोफाइल। अब क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अंदर इधर आएंगे, ये इधर, यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर H, न्यूक्लियोफाइल, ये लास्ट स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन्स, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये तीन ही स्ट्रक्चर्स बने। अब किसी भी स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर नहीं आ रहा है। नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है, बट नॉट ऑन नाइट्रोजन। तो इसका मतलब जब अटैक इज टेकिंग प्लेस एट पोजीशन 3, द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द हाइब्रिड which is formed from the attack at position 4 or at position 2, and therefore nucleophilic substitution takes place at position 2 in case of pyridine। ठीक है, अब एक और इसमें चीज छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बेसिसिटी। pyridine के बारे में हमने ये सब कुछ पढ़ा, और pyridine का स्ट्रक्चर जब हमने यहाँ शुरू में देखा, तो यहीं से देख लेते हैं। pyridine has an electron pair present in its hybridized orbital, which is available for donation, and therefore pyridine is a good base. It is known to show basic characteristics. For example, if it comes in contact with an acid, or pyridine is made to react with an acid, like HCl, it will form a salt. This salt, pyridinium chloride. Pyridinium chloride. So here in this reaction, pyridine is exhibiting or showing its basic nature. It is reacting with an acid to form a salt. And if pyridine is made to react with an alkyl halide, then it will form a quaternary ammonium salt. How? CH3 positive, यहाँ लिख देते हैं Cl नेगेटिव, इस तरह से। ये क्या है, दिस इज अ क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ ये बना। ये जो नाइट्रोजन था, ये एक्चुअली टर्शरी नाइट्रोजन है, लाइक अ टर्शरी नाइट्रोजन, जैसे कि टर्शरी अमीन्स में होता है। टर्शरी अमीन्स क्या होते हैं, R3N, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये जो नाइट्रोजन जिस तरह से टर्शरी नाइट्रोजन है, एंड it is also a base, it also reacts with alkyl halide to form a quaternary ammonium chloride in this case। तो उसी तरह से pyridine भी alkyl halide के साथ रिएक्ट करके एक quaternary ammonium salt बनाता है, जो कि एक बार फिर ये बता रहा है कि this pyridine is basic, the nitrogen present in this pyridine is a tertiary nitrogen, and that is why a quaternary salt is formed। So this is all we have to discuss in this video। pyridine हमने पूरी तरह से डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, दैट इट इज अ बेसिक मॉलिक्यूल और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, basic heterocyclic compound, and then the reactions, the types of reactions it will show, electrophilic substitution as well as nucleophilic substitution, and the mechanism of both the type of reactions as well as the orientation of electrophilic substitution and that of nucleophilic substitution. So with this, we come to an end in this video. We will study only this much. Thanks for watching the video.